Now you guys are going to become independent, responsible officers, isn't it? तो अब तक तो था कि somebody was planning for you, somebody was giving you the work, somebody was monitoring, checking. But now, when you go back after the exams, second officer, third officer, you will be planning yourself, isn't it? So अब थोड़ी सी change आप में आ जाएगी, and which you have to bring yourself. Of course, your exposure to MMD is first time. That examination system, and today what you are doing, a different way of learning. So आज से पहले you have finished your pre-C all classroom teaching, classroom interactions. But due to the circumstances today, this is a different way of life. So never mind. We have your 4 months with us. First of all of you are very warm. Welcome to VRI. To assist you in getting your exams cleared. The aim is not only to clear the exams. The aim is to gain knowledge so that you know your job on the ship, isn't it? एग्जाम पास कर लिया बट शिप पे जाके काम नहीं आता. ओके, सो वो भी आपने साथ साथ देखना. यू हैव केप्ट वॉचेस with chief officer, with duty officer, second officer, third officer. You have seen how the cargo moves, how the cargo works, and ship always runs for cargo, isn't it? And cargo is the most important thing. And हमारी job क्या है ship पे as an officer? What we are supposed to do regarding cargo? क्या आता है आपके मन में? Anybody? Safely take the cargo from one place to another. हाँ जी, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए. ठीक है, we are going to study cargo. Safely transfer of cargo from one port to another. Okay, very good. Anybody else? Sir, proper stowage and securing. Very good. और कुछ भी आपके मन में आता है. See, आप अभी you have come 1.5 year. You worked on different type of ships, isn't it? And you have seen cargo watches भी की हैं. Okay, चलो थोड़ा टाइम है बट थोड़ा आपको आइडिया आया होगा कि ये है क्या, सिस्टम क्या है, कर क्या रहे हैं हम. But tomorrow I am going to be a third officer. I will be the independent officer. Basically, you know, cargo is everything. Ship is running for cargo. Now my job as an officer on the ship is to deliver the goods in the same condition, the condition they were loaded in, isn't it? ये तो है नहीं कि if I load banana and discharge garbage. हमने कार्गो तो एकदम से बड़ा अच्छा फ्रूट लोड किया था, सब ठीक था, बट उसकी केयर की नहीं, या लोडिंग टाइम में, डिस्चार्जिंग टाइम में, ट्रांजिट टाइम में, and it got damaged or it got spoiled, then no meaning. Yes, sir. So इसी चीज को देखते हुए, so today we will see, यार cargo is the most important part of the ship. जिसके लिए शिप चलता है, the ship owner has to make profit, because if there is a cargo claim, there is a cargo damage, उसको तो endorse so करवाया. it is not one person. Mukul, you are saying something? Yeah, it is not one thing, it is the full team, everything right from captain to OS. We all are there on the ship to take care of the cargo, to deliver the goods, to load safely, and of course the safety paramount. Anything we do, now you have seen, working on a ship is a dangerous proposition, isn't it? You have seen the operations, whether you worked on tankers. Yes, sir. Worked on
gas carrier, general cargo, container ships. So we all the time been guiding you that, and now you have seen that working on the ship is slightly dangerous if you don't take care about the safety. So in that pretext also we will see when we discuss the cargo and we take about the topics, then we will see where do we have to see whether it is safe or not. Why? Because now you are going to be in charge, you are going to be responsible. अब मैंने किसी को कहीं पे भेजना है काम के लिए, whether it is stevedores, whether it is shore people, ship's crew, I must make sure that area of operation is safe, isn't it? And उसके लिए हमने पढ़ाई की भी है, and we will do more studies. So when you know the theory, then we will take the precautions also. अब मेरे को if I know the hazards, then I can take precautions. अगर मेरे को hazards ही नहीं पता, बिस्लरी की बोतल में एक लिक्विड पड़ा, मेरे को प्यास लगी है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये पानी है या कोई केमिकल है, उसको पी लेता हूँ मैं. It has happened. तो ये सारी चीजें देखते हुए we will see how we go about. So I think all of you are there. सबसे पहले मैं आपको कार्गो का पेपर फॉर्मेट दिखाता हूँ, that what are the basic topics जिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे and how we are going to do these answers, how we have to write these answers. So आपके पास I just have to share the screen first. Oh. I don't have the sharing rights. 1 minute. Kumarji, good afternoon. Sharing right, second mate junior. Thank you. Yeah, I'll just share my screen and show you the paper format. That these are the topics जिसमें से आपको questions आने. So I'm just waiting. Let me get the sharing rights. So basically your question paper is गौतम बच्चे अपना all of you be careful. अगर you have a background noise तो अपने mics को mute कर लीजिए. When you want to speak, that time you unmute your mics, okay? Otherwise, I know India we have a lot of noises outside. Sometimes it becomes a sabji mandi. Sometimes somebody else is bothering from outside. I hope you guys can see the screen now. Yes, sir. Can see the screen. Yeah. Now this is your basically the paper format for the examination in the MMD. Now if you see this, the total marks are 200. Total 10 questions will be there, and we have to attempt 8 questions. Duration 3 hours. Passing marks 120, that is 60%. So we will not aim for 60. Of course, this is a professional exam, so we should know everything. And anyway, still you have choice of 2 questions. So total there will be 10 questions. You are supposed to attempt 8. So out of those 8, 2 questions are compulsory. That is question number 1 and question number 2. These are the numericals. Question number 1 is cargo calculation. That is based on the stowage. That basically what is the relation between stowage and space. How much space you have on the ship, how many tons of cargo you can load, what is the stowage factor, broken stowage, load density. These will be doing it. And then second is, and इसी के साथ आपका एक टैंकर क्वेश्चन भी, that is how to calculate cargo on the oil tankers. So one question is
Now question number 1, which is basically out of these 2-3 topics. One is the stowage calculation. Second is your tackle, purchase or tackle calculations. That is, you must have seen the blocks and how to calculate that what size of rope is required. So that is called the purchase and tackle calculation. Stowage, purchase tackle, or maybe this calculating the displacement of the ship from the draft. इन तीनों 4 टॉपिक्स में से आपको एक क्वेश्चन आएगा, 1 numerical, and second numerical is on the tanker cargo calculation, that how to calculate cargo on the tanker, how much cargo is there. So these are the 2 numericals, question 1 and 2 compulsory. Question number 3 will be again crude petroleum product including inerting, cow procedures, hazards and precautions. That is your tanker theory. So third question will be on the tanker theory. Very simple one. जिन्होंने tankers किए और जिन्होंने नहीं भी किया. So please do not worry that I have not been on tankers. So very easily I will explain you everything. What is tanker, how the tanker works, how loading or discharging operations go, what are various things, उसका layout क्या होता है, what is crude oil washing, what is inerting, हम सब पढ़ेंगे in a very simple way so that even if you have not done tanker, you can answer this question very well. थ्योरी है पढ़ने के लिए, आपकी मेमोरी तो वैसे ही शार्प है, नो I10. क्वेश्चन नंबर 4, केमिकल कार्गोस, उनके हैजर्ड्स क्या है, कार्गो के केमिकल्स के प्रॉपर्टीज, प्रिकॉशंस, एंड सेम उसी का पार्ट बी आ जाता है गैस कैरियर्स का. व्हाट आर द अगेन हैजर्ड्स ऑफ गैस कार्गोस और उनकी प्रिकॉशंस. क्वेश्चन नंबर 5, if you see IMDG including IMDG containers, IMDG means there is a code, International Maritime Dangerous Goods Code. So basically this is very important topic, that how we transport the dangerous goods. Now जिन्होंने containers किए हैं, so they know if you have been carrying DG containers, तो उसको हम कैसे रखते थे, how to store them, where to store them, उनके hazards क्या हैं, क्या क्या हमें उसके बारे में जानना है, इस कोड के अंदर लिखा क्या है, इस कोड का लेआउट क्या है. सो देयर आर लॉट ऑफ कोड्स इन दिस कार्गो. जैसे हमने पहले देखा है कि यस लैशिंग वगैरह करनी है तो उसका कोड है CSS, स्टोरेज, वेरियस टाइप्स ऑफ कार्गो. सो कोड्स आर बेसिकली लाइक अ बुक विच गिव्स यू द गाइडलाइंस. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन बल्क कार्गोस. अभी आई डोंट नो एनीबॉडी हैज वर्कड ऑन द बल्क कैरियर. Is there anybody who worked on the bulk carrier? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. Yeah, good. So जिन्होंने bulk carrier पे काम किया है, so they know how this bulk carrier loading, discharging, cleaning of the holds is carried out. Isn't it? Yes, sir. Bulk cargoes के क्या क्या hazards हैं, उनके अपने dangers हैं. So वो भी हम सब देखें. So उसके ऊपर आपको एक question रहता है. Coal cargoes. I don't know if any of you carried coal. High density iron ore, grain, so all these are in bulk cargoes. Then one you have on the code for safe practice, that is your IMSBC. Now IMSBC code, BLU code, basically they are concerning your bulk cargoes. So when we handle bulk cargoes on bulk carriers, this International Maritime bulk code जो है that is applicable. Dangerous cargoes के लिए IMDG code is applicable. तो ये सारे कोड जो हैं हम देखेंगे, पढ़ेंगे. व्हाट आर द कंटेंट्स, दीज आर द वेरी यूजफुल बुक्स. क्वेश्चन नंबर 8 ऑन कंटेनर्स, रोरो कार्गोस, कार कैरियर्स. सो बेसिकली आप सबने, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डन कंटेनर्स. तो कंटेनर्स के ऊपर तो क्वेश्चन रहता ही है कि कंटेनर्स हैं क्या. ऑल शिप्स आर शिप्स, सो देयर इज स्लाइट डिफरेंस. कंटेनर्स में यू हैव holds where we have cell guides. Bulk carriers में holes are right from top to bottom, big hole. Tankers में उसी को हम tanks कह देते हैं. And then question number 9, reefer, general cargo, deck cargo, heavy lift. So जब हमने deck cargo carry करना है, what is deck cargo, what is heavy lift, you know, you must have seen, may not have worked but seen on the TV और उसकी net पे pictures देखी होंगी. We all type of cargo is carried on the ships. Big boilers, vehicles, आपकी JCBs,
all these things come on the ships only. Even your arms, ammunition, सारी guns वगैरह they all come on the ships. तो ये सारी जब हमने लोड करनी है उसको कैसे? So question number 9, one question will be on refrigerated cargos. Here they were reefer ships. आजकल reefer ships कम हो गए, but previously they were, the ship was fully, उसके 3-4 holds होते थे. The entire ship is refrigerated. So एक question उसके ऊपर. Then question number 10, damage to cargo spaces, inspection and reporting, cargo gear inspections. अभी आपने देखा होगा कभी आपके शिप पे डैमेज भी हुई होगी, स्टीवडोर्स व्हेन दे आर हैंडलिंग क्रेन्स, कभी वो कार्गो को ठीक तरह से नहीं हैंडल करते. देयर कैन बी अ डैमेज टू द शिप, देयर कैन बी अ डैमेज टू द कार्गो. तो उसकी आपने हो सकता है मे बी इफ यू हैड द अपॉर्चुनिटी आपने रिपोर्ट भी बनाई होगी, या सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर या चीफ ऑफिसर को आपने देखा होगा. कंपनी के स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, नो, थर्ड पार्टी डैमेज रिपोर्ट, उसको भी हम भरते हैं. सो वी होल्ड द स्टीवडोर्स कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल उसको रिपेयर करो. तो वो रिपोर्ट कैसे बनानी, वो इंस्पेक्शन जो हैं, हाउ टू डू द इंस्पेक्शन आफ्टर डिस्चार्जिंग. तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर. सो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट थोड़ा इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सो दैट आई कैन डू विद इन द टाइम. सो आपको लगेगा ये पेपर काफ़ी लेंथी होता है, एक्चुअली इट इज़ लेंथी. एंड सेकेंड थिंग, आपके पास आजकल राइटिंग की हैबिट चलेगी. तो अभी आपके पास टाइम है, फ्रॉम डे 1 यू प्लीज स्टार्ट गो बैक इनटू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, बिकॉज 3 hours यू गो टू कंटिन्यूसली राइट. तो आपको लगेगा पेपर बहुत लेंथी है. सो ओनली थिंग इज वी हैव टू गिव अ टाइम कि 8 क्वेश्चन मैंने करने हैं 3 घंटे में, एक क्वेश्चन को मैं कितने मिनट देता. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू डू दिस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आता है, आप उसके लिए पेजेस के ऊपर पेजेस लिखते चले जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि एंड में टाइम खत्म हो गया और एक क्वेश्चन छूट गया. ना इमेजिन अगर आपका एक क्वेश्चन छूटा तो 200 में से आपके पास 175 मार्क्स रह गए, जिसमें से आपको उसने 175 में से मार्क्स देने. तो क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है. तो इसके लिए थोड़ी सी हमें राइटिंग की प्रैक्टिस है. नाउ इट इज स्लाइटली डिफरेंट, यू हैव वर्कड ऑन द शिप्स, वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट था कि यार दिन रात काम ही काम था, नो, सोने को भी नहीं टाइम मिलता था, पढ़ाई तो दूर रही. आई डोंट थिंक सो एनीबडी गॉट टाइम टू स्टडीज. किसी को मिला था टाइम? हाँ ऐसा लास्ट वीक या लास्ट मंथ में थोड़ा सा दिया था कैप्टन. और सर ये क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज, एक बार प्लीज सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा. 8. यस सर, व्हाट इज दिस पीसीसी एंड पीटीसी प्लीज? पीसीसी बेसिकली प्योर कार कैरियर, प्योर कार कैरियर्स, रोरो शिप्स, कंटेनर शिप्स. एंड सर पीटीसी इट इज? पीटीसी तो मेरे को आई डोंट नो व्हाट इज पीटीसी. ठीक है, आप नॉर्मली में आपको क्वेश्चन इसी पे रहते हैं, कंटेनर, रोरो एंड कार कैरियर एंड रोरो ऑलमोस्ट सेम. सो कंटेनर या रोरो में से ही एक क्वेश्चन आता है. ओके, सो नॉर्मली रोरो में से भी रहता है और कंटेनर में भी रहता है कि उनकी क्या प्रिकॉशन है, कैसे लोडिंग डिस्चार्जिंग होती है. अगर हमने नहीं भी काम किया, सो रोरो शिप्स क्या है? रोरो शिप्स आर बेसिकली लाइक योर पैसेंजर शिप्स विद कार्गो, कि पीपल कम विद देयर ओन कार्स, ड्राइव ऑन टू द शिप, कार को कार्गो में डाल देते हैं एंड दे गो टू देयर ओन कैबिन्स. सो पैसेंजर कम कार्गो इज कॉल्ड रोरो, रोल ऑन रोल ऑफ कार्गोस कहते हैं. पीसीसी इज अ कार कैरियर, जिसमें आपने देखे होंगे ह्यूज कार कैरियर्स विच लोड 3000 4000 कार्स, मर्सिडीज, बेंटले, सारी कारें इन्हीं में जाती हैं. एंड कंटेनर्स ऑफ कोर्स यू नो. 9th इज रेफ्रिजरेटेड, डेक कार्गो, हैवी लिफ्ट. तो ये सब हम पढ़ेंगे. सो दिस इज बेसिकली, आई विल सेंड यू दिस ताकि आपको याद रहे कि यार कौन से वैसे तो सारे टॉपिक कवर होंगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे यू नो कि यार कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं. वी कैन सी द पास्ट पेपर्स ऑल्सो. अभी नहीं, सो लेट अस स्टार्ट द स्टडीज, देन वी विल सी that how we go about this. Okay, so today we will start with a very simple basic one, what we call the preparation, hold preparation. Now, hold preparation क्या है कि ship is coming to load, any ship, tanker,
bulk carrier, general cargo. So we have to be ready, isn't it? We cannot come to terminal and then we start cleaning anything. Now, इस चीज को शिप को प्रिपेयर करने के लिए after the cargo has been discharged for the new voyage, when we have to come for loading, the ship has to be ready. There are a lot of things which are to be checked, which are to be carried out. तो अभी आपने जो जो शिप भी किए हैं, तो आप थोड़ा सा कुछ मेरे को आइडिया बताएंगे कि व्हेन वी प्रिपेयर द शिप, हमें किस किस चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, या व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव टू सी. आई होप यू गाइस कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर, और मेरी लैंग्वेज you prefer, because I'll be speaking in Hindi and English, so I hope nobody has got problem with English, so everyone can understand. Yes sir, no problem sir, your voice is loud and clear sir. चलो ठीक है. एनी स्टेज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया, कोई वर्ड नहीं समझ आता, किसी चीज का मीनिंग नहीं आता, सो प्लीज डोंट हेजिटेट. ओके, यू हैव कम हियर टू लर्न. ऑलराइट, तो नॉर्मली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन द बेस्ट पॉसिबल इंग्लिश, एंड जो भी हो सकता है, फ्यू ऑफ यू मे नॉट बी गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश, इजंट इट? तो ये बच्चे जो 4 महीने हैं, इनको आपने यूटिलाइज करना है ताकि यू कैन आंसर टू द एग्जामिनर, बिकॉज एग्जामिनर्स एक्सपेक्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज हमारा जो ट्रेड है, हमारा जो कैरियर है, दैट इज इंटरनेशनल कैरियर. टुडे फ्यू ऑफ यू मस्ट हैव वर्कड विद फॉरेन नेशनैलिटीज. अब इफ यू आर वर्किंग विद एनी अदर नेशनैलिटी, उसके साथ आप हिंदी में तो नहीं बात कर सकते. Japanese, Filipino, they won't understand. So on उस बेसिस को देखते हुए, प्लस सेकंड थिंग, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, नाउ आई वार्न यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि होता क्या है, यू नो द थिंग, आपको आता है सब कुछ, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन द प्रॉपर लैंग्वेज. लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ जाती है. आप लिख कुछ और रहे हो, उसका मीनिंग कुछ और निकल जाता है. तो इसलिए आपने यहाँ पे भी क्लास में भी ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू आंसर एज इफ यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन, या आप किसी को आंसर कर रहे हो. तो उससे क्या होगा, आपके पास एक फ्लुएंसी आ जाएगी, आपका एक कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा. ओके, दैट इज द आइडिया ऑफ कमिंग हियर. अदरवाइज तो बुक पढ़ के कोई भी एग्जाम दे सकता है, एक्स्ट्रा मास्टर का भी. सो यू प्रिपेयर योर सेल्फ कि हाँ जी ये चीज़ मेरे को पूछिए, अच्छा यार ये ऐसे होती है, हाउ डू वी आंसर दिस. तो जितना आप बोलोगे, जितनी बोलने की आपकी, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आई वांट यू टू डेवलप दैट पावर ऑफ एक्सप्रेशन. चाहे आपने आंसर लिखने हैं, एक बार आपने समझ लिया, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी समझा सकते हैं. तो ये चीज़ की आपने कोशिश रखनी है दैट व्हेन एवर वी स्पीक, व्हेन एवर वी आंसर, एंड इंट्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको जो भी जितना भी आता है, नेवर माइंड वो गलत होगा, ज़्यादा क्या गलत होगा, एंड यू आर कम फॉर दैट पर्पस. कोई भी डाउट आपको किसी भी चीज़ का है, डोंट गो विद द डाउट, बिकॉज अदरवाइज वो लाइफ टाइम फिर डाउट रह जाएगा. सीनियर होते जाओगे, फिर आपको वैसे ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा, यार दूसरा क्या सोचेगा. तो इसके लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं रखना, कोई भी वो नहीं करना. नहीं समझ आता उसी वक्त बोल देना, आई विल रिपीट, आई विल गो बैक अगेन. तो इसलिए आपका मेरा पहला क्वेश्चन था कि आपको, हमें सपोज शिप को प्रिपेयर करना है, तो व्हाट ऑल थिंग्स वी विल सी. आपके मन माइंड में क्या आता है कि सपोज यू आर अ ड्यूटी ऑफिसर, तो मैंने शिप को प्रिपेयर करना है, तो क्या क्या काम हमें करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हम चेक करेंगे. बेसिकली फॉर जनरल कार्गो और बल्क कैरियर्स, नॉट द टैंकर्स. टैंकर पार्ट आई विल टेक सेपरेटली. So hold cleaning. ओके, गुड. So firstly, we will check for the ventilation. ओके, वेंटिलेशन, गुड. Hatch cover opening closing. Okay, hatch cover opening closing. We will check for the hydraulics, they are working properly or not. We will check for the cranes, are they operating. Some ships having that Check for weather pattern. hatches to be pulled up by the cranes. Some ships having that, so that crane is operating properly or not. Okay, And good. That is cargo gear. So short में हम उसे कह सकते हैं कि I will check the cargo gear is in good working condition. Yeah, cargo gear is in Good working condition. Yes, sir. Yes, Okay. and we will check for the that we apply
means geothermal mats. We will check for that bilges. Okay. We will check for और किसी को भी बोलने दो, चलो ठीक है बच्चे, आपका हो गया वीएम। अभी कोई और है, उसको मन में भी कुछ पॉइंट होंगे। चलो आपने बहुत अच्छा बोल दिया, कार्गो गियर भी ठीक होना चाहिए, विल्जेस भी चेक करेंगे, होल्ड क्लीनिंग भी होगी, वेंटिलेटर भी देखे हमने, वेंटिलेशन भी चेक करेंगे, वेंटिलेटर्स आर वर्किंग और नॉट। एनीथिंग एल्स? Whether that door, sir. Safety or क्यों performing hold cleaning? सेफ्टी ऑफ द Safety of crew performing hold cleaning. Okay, safety means the working conditions, the job crew, Yes, sir. whosoever is Proper whatever working work they are condition. doing, Yes, sir. that they are working in the safe. They are working in Yes, the a safe very environment, well lit conditions, proper oxygen analysis, and before going down, any sign of damage that may have caused uh, during the unloading of the cargo, as in maybe yes, some ladders maybe stuck in the grab, and it is not possible to go down, and before yes, ventilation, some yes. even देखो the अभी कितने पॉइंट्स आपके, work permits. या so many points आपके मन में आ गए कि देखिए बोलने से you have worked on the ship. Now you can imagine, I think you can imagining, हाँ यार when I was on the ship, जब हमने लोडिंग करनी थी उससे पहले हमने क्या क्या पॉइंट्स है। बट अब इन पॉइंट्स का क्या है कि ये थोड़े से पॉइंट्स जो है सीक्वेंस में नहीं। अब जब मैंने आंसर लिखना है, सपोज कि यार इफ़ आई हैव टू लोड दिस कार्गो, चाहे वो बल्क कार्गो हो चाहे वो जनरल कार्गो हो, इफ़ आई हैव टू प्रिपेयर द होल्ड, तो मैं थोड़ा सीक्वेंस में जाऊँगा, ताकि वो क्वेश्चन जो है, मेरा आंसर जो है वो थोड़ा ठीक दिखे कि यार पहले ये करेंगे, पहले ये करेंगे, ये करेंगे, सारी चीज़ हम लाइन में लिखेंगे। उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उससे पहले भी कि बिफोर आई स्टार्ट doing this cleaning or all these operations, very rightly you said that the inspection for the damages and defects. During previous discharge, as it is when we discharge the cargo, on completion of discharge we have a look, we definitely see any damage तो नहीं है वहाँ पे, but after we sail out, before we prepare the holds, so उसमें भी हम एक चेक करते हैं कि लैडर तो नहीं टूटी हुई, लैडर ही टूटी है, somebody cannot go down, तो हम क्या करेंगे, तो वो छोटी छोटी रिपेयर्स हम सारी करेंगे। उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट होता है आपका, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि मेरा जो शिप है, जो कार्गो मेरे को ऑफर किया गया है, कैन दिस शिप कैरी दिस कार्गो और नॉट। अब आपने कार खरीद ली, आप अपने गाय भैंस को कार में ले जाना चाहते हो, तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा यार अलाउड भी है कि नहीं है। ये तो पैसेंजर कार है, इसमें तो कार्गो नहीं अलाउड होता। सिमिलरली शिप्स में क्या होता है, दैट एवरी शिप इज अप्रूव्ड फॉर सर्टेन थिंग्स, इजंट इट? सो ऑन ऑल द शिप्स यू कैनॉट कैरी एवरीथिंग। अब आपके पास टैंकर है तो आप कहेंगे अच्छा एक बड़ा बॉयलर में टैंकर के ऊपर लोड करके ले जाता हूँ, कैन वी? नो, इजंट इट? So सबसे main important thing, preparation prior loading is when preparing vessel for loading, it is important the ship is loaded as close as possible to its maximum dead weight or capacity. तो जो चीफ ऑफिसर है, जो कार्गो ऑफिसर है, उनकी यही टेंडेंसी रहती है that when we load the ship, space is money, कि हम उसको मैक्सिमम लोड करें to the dead weight जितना permissible है as per the load line, and to ensure quality of cargo is not affected while it is in the vessel's custody and reach its destination in the same condition as when it was loaded. तो ये चीज तो हमारी प्राइम ड्यूटी है। Now quality of cargo can be affected how? Due to contamination, inadequate ventilation, staining, moisture, water contact. Sir, we should write down this. आप समझ लीजिए, anything if you do not, I'll send you these notes. Okay? Okay. क्या मैं आपकी मेल पे, जब आपकी मेल आईडीज मेरे पास आ जाएंगी, आई विल सेंड यू दीज नोट्स इन द वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपको भेज दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपने कुछ आपको समझ नहीं आता, आधा तो सुनने से, अटेंशन से आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये क्या चीज़ है, इजंट इट? तो कुछ नहीं पता लगता, कुछ नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव नॉट वर्कड ऑन द सेम टाइप ऑफ शिप्स। टैंकर्स में थोड़ा अलग होता है, दिस इज बेसिकली फॉर जनरल कार्गो, कंटेनर्स, बल्क कैरियर्स की उसकी होल्ड प्रेपरेशन कैसे है, व्हाट ऑल थिंग्स वी चेक। डोंट वरी अबाउट द
राइटिंग अगर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, आई डोंट स्टॉप यू कि आपको कुछ पॉइंट्स यू वांट टू मेक इट ऑन योर बुक, यू कैन राइट, बट मैं ये आज चीज आपको पूरी भेज दूंगा. ओके. So now he says quality of cargo can be affected by at least there are lot of many things, but ये चीजें सबसे important है जो मैंने ध्यान में रखनी है before I prepare. Now appropriate information relevant to the cargo. Its stowage securing should specify the precautions necessary. तो जो मेरे को cargo offer किया है, मेरे को सबसे पहले तो उसकी precaution, उसके hazards पता होने चाहिए. कोई भी cargo, suppose you are loading even coal. अभी मेरे को अगर उसके हैजर्ड्स नहीं पता, कैन आई टेक एनी प्रिकॉशंस? मैं कहूँगा चले कुछ नहीं होता, चलो लोड करो, होल्ड बंद करो, चल पड़ो. सो दैट इंफॉर्मेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू ईदर बाय द शिपर, जो जिसका कार्गो है, जो लोड करता है, और देयर आर बुक्स जो हम रेफर करते हैं, वहाँ से हम पढ़ेंगे कि यार इस कार्गो के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, व्हाट ऑल थिंग इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द हैजर्ड्स. तो आई टेक प्रिकॉशंस. In case of general cargo or cargo carried in cargo units, general description of cargo should be known. Gross weight of the cargo मेरे को पता होना चाहिए, because I have to do the planning. अब जो चीफ ऑफिसर है जिसने प्लानिंग करनी है, ड्राफ्ट्स देखने हैं, ट्रिम देखनी है, स्ट्रेसेस देखने हैं, तो हमें वेट भी चाहिए भी कितना कार्गो ऑफर हो, कितना मैं ले जा सकता हूँ. ये तो है नहीं कि दे कीप ऑन गिविंग एंड वी कीप ऑन लोडिंग. देयर इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्शन एंड एनी relevant properties of the cargo should be known to us. बल्क कार्गोज में स्टोरेज फैक्टर पढ़ेंगे हम, क्या होता है स्टोरेज फैक्टर, कार्गो ट्रिमिंग प्रोसीजर्स, लाइकलीहुड ऑफ शिफ्टिंग, एंगल ऑफ रिपोज, ये सारी कार्गो की प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें पता होनी चाहिए. In case of concentrate or other cargo which may liquefy additional information, what we call transportable moisture limit. जिन्होंने बल्क कैरियर्स किए हैं वो आपने देखा होगा, सी वॉशर्स के साथ अगर आप रहे हो, इसकी जो ट्रांसपोर्टेबल मॉइस्चर लिमिट हमें पता होनी चाहिए. कैन वी कैरी दिस कार्गो और नॉट, इजंट इट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन. इन केस ऑफ बल्क कार्गोस, केमिकल प्रॉपर्टीज, सल्फर, कोल, यार इसके साथ क्या हो सकता है, इजंट इट? ये तो है नहीं कि एक बार हमने लोड कर दिया एंड देन एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक. सारी चीज़ें, सबका ध्यान हमें देना है, वेंटिलेशन करनी है, नहीं करनी, कब करनी. Using this information, what we will ensure is that different commodities are carried are compatible to each other. ये आपका कार्गो प्लान में आ जाता है. तो ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार आ जाता है कार्गो प्लान का. आपको 3-4 कार्गो दे दिए, 2-3 पोर्ट्स दे दी डिस्चार्ज की, लोडिंग की, तो नाउ यू मेक आप उसकी कार्गो स्टोरेज प्लान कैसे बनाओगे, isn't it? मुझे अपना माइक जरा वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, there is noise coming. Yeah, thank you. So this we have to see कि अभी सबसे important चीज जो what is important in the cargo is the cargo is suitable for the ship and the ship is suitable for cargo. ये चीज सबसे पहले हमने देखनी है. ये नहीं है कार्गो लोड कर दिया then we realized oh ये तो अलाउड ही नहीं था. Otherwise, if you have taken care of these two things, then nothing can happen. फिर तो आपकी planning, storage, securing सारा कुछ आ जाता है. The cargo can be suitably stored and secured on board the ship and transported under all expected conditions during the intended voyage. General inspection, सबसे पहले जैसे हमने अभी points थे कि first and foremost when I have to prepare tomorrow, you may be given this job by the chief officer कि अच्छा भाई आप जरा deck पे please take care of this. आप ये वाले होल्ड्स हैं, वी आर स्टार्टिंग आफ्टर डिस्चार्जिंग द शिप सेल्ड आउट. समटाइम द जॉब इज गिवन टू द ड्यूटी ऑफिसर ऑल्सो. चलो यार ब्रिज वॉच कैप्टन साहब कर लेंगे, कोई और कर लेगा, चलो हम डेक पे अपना शिप को प्रिपेयर करते. तो सबसे पहली चीज़ कोई आपको पूछे कि यस नो कार्गो वर्क इज समथिंग दैट वेदर सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा. चीफ ऑफिसर का थोड़ा हायर अप लेवल पे आ जाता है, तो मेरे को भी पता होना चाहिए. ये तो है नहीं अब एबी की तरह, तो मैं नहीं कुछ मेरे को अगर नहीं आता मैं हर चीज़ के लिए चीफ ऑफिसर को बुलाऊंगा, तो मेरे को भी नॉलेज होनी चाहिए. तो सबसे पहले आपके आगे जनरल इंस्पेक्शन. दिस कुड इंक्लूड डैमेज टू टैंक टॉप, मिसिंग बिल्ज कवर्स. अभी बल्क कैरियर में यू डिस्चार्ज द कार्गो, लास्ट में बुलडोजर से डिस्चार्ज करते हैं. बुलडोजर आपके बिल्ज कवर को उठा के ग्रैब में डाल देगा. यस वो आपके साथ. यस सर, ईरान में हुआ था सर.
हाँ, तो देखिए अभी बिल्ज कवर मिसिंग है तो प्रॉब्लम आ जाएगी, सारा कार्गो बिल्जिस में गया, सब काम खत्म। और कहाँ से हम लेके आएंगे लास्ट मिनट में बिल्ज कवर, कोई स्पेयर तो होते नहीं। ब्रोकन लैडर्स, डैमेज कार्गो बैटन्स, डेंटेड कोमिंग्स, लीकिंग हैच कवर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसको ब्रॉडली देखेंगे बिफोर वी कम टू द लोड पोर्ट। तो ये सारा का सारा ड्यूरिंग सेलिंग कितना काम होता है। पीपल वंडर अदरवाइज कि यार तुम सेल करते हो क्या काम होता है, नहीं, तो दे डोंट रियलाइज कि यार शिप को पहले प्रिपेयर करने के लिए सो मैनी थिंग्स आर टू बी सीन। एंड देन सुटेबिलिटी फॉर कार्गो। अब आपकी जो क्लीनिंग है, नाउ कम्स द कि आपने इंस्पेक्शन कर ली, डैमेजेस देख ली, उनको रेक्टिफाई कर लिया, देन कम्स द suitability. The hold must be clean to standard, suitable for the cargo. हर कार्गो के लिए क्लीनिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट। कोल लोड करना है तो थोड़ा चलेगा, आयरन ओर लोड करना है तो इतना नहीं है, जनरल कार्गो लोड करना है चलो ठीक है, कचरा नहीं होना चाहिए, कंटेनर्स है उसके लिए अलग। बट इफ आई एम कैरिंग ग्रेन, एलुमिना, कोई और फूड प्रोडक्ट, राइस इन बल्क, उसके लिए तो होल्ड जो है एब्सोल्युटली शाइनिंग होनी चाहिए। यस सर, सल्फर ग्रेन्स या सल्फर के लिए तो इसके लिए जैसा आपको पूछे, सो बेसिकली दीज आर द पॉइंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बट उसमें थोड़ी सी वेरिएशन रहेगी एज पर द कार्गो, बट लॉट ऑफ पॉइंट्स आर कॉमन इन मोस्ट ऑफ द कार्गोज। अब जनरल कार्गो हुआ तो लैशिंग पॉइंट्स, स्पेस, डायमेंशंस नीडेड फॉर कार्गो। अब मैंने कार्गो प्लानिंग तो कर लिया बट फाइनली आई फाइंड कि वहाँ तो जगह ही नहीं है। एनी ऑब्स्ट्रक्शंस टू स्टोरेज, लैडर्स, वेंटिलेटर डक्ट्स, so this may be done while the ship is en route or just after completion of discharging and prior loading at the same port. अब आपकी आ गई होल्ड प्रेपरेशन। हमने शिप तो ठीक है, बाकी चीज़ें तो सब रेडी होती हैं, देयर इज नथिंग टू बी, सो ओनली जो कार्गो स्पेसिस हैं जिसे हम कहते हैं कार्गो होल्ड्स, तो कार्गो स्पेसिस टू बी केप्ट रेडी फॉर द लोडिंग। तो उनको सबसे फर्स्ट पॉइंट इज थॉरोली स्वेप्ट, वॉश्ड डिपेंडिंग अपॉन द कार्गो टू बी लोडेड ना। यहाँ पे आपकी क्लीनिंग स्टैंडर्ड आ जाएगा कि कौन सा कार्गो है, आप उसकी तरह उसको उतना ही वॉश करोगे, उतना ही क्लीन करोगे। बिल्जेस मोस्ट ऑफ यू मे हैव डन, देखी भी होगी आपने बिल्जेस, एक्सेप्ट जिन्होंने टैंकर्स किए हैं वो, या साफ भी किए हैं सर। हाँ जी बच्चे, चलो देखो अभी आपको, तो ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इजंट इट। अब आपको पता है कि आपने बिल्जेस साफ किया, हाउ डिफिकल्ट इट इज। अब आपको साफ करने का चांस नहीं होगा, बट आपको इंस्पेक्शन का होगा। नाउ यू नो यार कहाँ पे क्या चीज़ है, मैंने भी साफ किया था, कहाँ पे कचरा हो सकता है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब बिल्जेस में इंपॉर्टेंट क्या होता है, सो वी विल डिस्कस दैट कि बिल्जेस की इंपॉर्टेंस क्या है। एनीबडी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्जेस? आज में बिल्जेस दी क्यों होती है, क्विकली, आज टाइम कम है। Sir, while cleaning the hole to pump out the water which we use to clean the holes. In case water ingress हो जाए किसी भी केस में तो वो पंप आउट कर सकें। एनीथिंग एल्स? सब बिल्जेस जो कार्गो सेटिंग होती है उसमें जो वाटर एक्यूमुलेट होता है बिल्जेस में, उसको पंप आउट करने के लिए। ओके बच्चे, आपका थोड़ा स्पीच जो है या आपका स्पीकर जो है लगता है, एनीवे आज नहीं है वैसे, एनीवे यू कांट डू एनीथिंग, आपके लैपटॉप में ही स्पीकर बिल्ट इन होगा, बट आपकी आवाज़ थोड़ी सी क्रैकलिंग नॉइस है, इफ़ यू कैन डू एनीथिंग। ओके गुड, सो ये हो गया बिल्जेस की, ठीक है। होल्ड में क्लीनिंग के लिए हमें उसको करना है, मॉइस्चर डैमेज, मॉइस्चर जो आता है कई बार कंडेंसेशन होगी, वो पानी जो है बिल्जेस से हम निकाल सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द बिल्जेस की, गॉड फॉरबिड अगर आपके होल्ड में पानी आ जाता है by any other means, if the hold starts flooding, तब हम क्या करेंगे? How do we take out the water? Even minor collision भी है, छोटा सा collision भी हुआ, पानी भरना शुरू हो गया, how can we take out the water? Only bilges, isn't it? अभी आपकी जो बिल्ज लाइन है, आपने इंजन रूम में भी काम किया होगा, द बिल्ज लाइन हैज अ कनेक्शन जो कि उसको बैलास्ट लाइन से कनेक्ट कर सकता है। यू कैन पुट अ बिगर पंप, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने बिल्जेस जब प्रिपेयर कर रहा था उस वक्त ध्यान नहीं दिया, बिल्जेस की सफाई नहीं की, एंड इफ द बिल्जेस आर चोक्ड, नाउ हाउ दिस बिल्जेस लुक लाइक दिस। अगर ये बिल्जेस मैंने यहाँ साफ ही नहीं की, दिस इज द सक्शन पार्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल रोज बॉक्स और स्ट्रम बॉक्स, दिस इज नथिंग, इज जस्ट अ फिल्टर। अब यही एरिया साफ नहीं है, यहीं पे मड है, सब कुछ है, आप जो मर्जी पंप लगा दो, कहाँ से पंप आउट करोगे?
अब उस वक्त कहेगा वो यार ध्यान नहीं दिया. सो वेन एवर नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, जब आप ऑफिसर ऑफ द वॉच हो, जब आप किसी इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हो या कल को आप चीफ ऑफिसर बनोगे, तो यू मेक श्योर दैट दीज एरियाज आर वेल क्लीन एंड सक्शंस आर ट्राइड आउट. सफाई करने के बाद जब आपने सफाई कर लिया उसका सारा कुछ, इसको भी खोलना आसान होता है, जस्ट एक पिन होती है, इसको निकालिए, दोनों पीस में सेपरेट हो जाता है. एंड इसके हमने, ये आपका नॉन रिटर्न वॉल्व होता है, एक इंजन रूम में भी होता है, यहाँ पे भी है, इसको खोलो. कई बार ये भी काम नहीं करते. कुछ सफाई करने के बाद फिर हम बिल्जीज को ऐसा कवर कर देते हैं ताकि पानी ही जाए, इन बिल्जीज में कचरा ना जाए. दिस इज द बिल्ज कवर्स बेसिकली कवर्ड ऑन द बल्क कैरियर्स. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बिल्जीज को जब हमने ट्राई आउट करना है, क्लीनिंग करनी है, थॉरोली क्लीन, वॉश्ड, सक्शंस, ट्राइड आउट. ट्राइंग आउट, somebody ask you कि how will you try out the bilges? Simple, just fill up with water. चाहे हम वॉशिंग नहीं भी कर रहे, जस्ट फिल अप द बिल्ज, डेक वाटर चला के उसको भर देते हैं, फायर होज लगाइए, फिल अप द बिल्ज वेल, एंड देन उसका पंप चलाइए, देखिए सक्शन है, इफ इट इज गेटिंग पंप्ड आउट, लाइन भी क्लियर हो जाएगी एंड आपकी बिल्जीज, यू आर सेटिस्फाइड कि एवरीथिंग इज वर्किंग गुड. क्यों? अब तो मेरे होल्ड्स खाली हैं, आई कैन डू एनीथिंग, बट वंस यू लोड द कार्गो देन दिस बिल्जीज मे नॉट बी एक्सेसिबल टू यू. तो इसलिए जो बिल्स क्लीनिंग है, इट इज नॉट ओनली फॉर द कार्गो, नॉट ओनली फॉर मॉइस्चर, या नॉट ओनली फॉर कि एक जो हम सफाई कर रहे हैं उसके लिए तो मैं सबमर्सिबल पंप लगा के भी पानी को बाहर फेंक सकता हूँ. बट जब कार्गो लोड कर रही है, शिप इज एट सी एंड सम मिसहैप टेक्स प्लेस एंड द कार्गो होल्ड स्टार्ट्स फ्लडिंग, दिस इज द ओनली वे टू सेव द शिप, टू पंप आउट द वाटर. Bilges should be free from any traces of previous cargo, contain no water, no foul odors, and to be covered with burlap to avoid any suctions being blocked by any debris. Next, जैसे आपने कहा vents to be tried out, अभी मेरे को ventilation भी जरूरत हो सकती है at sea. You are loading steel cargo. अगर आप उसकी वेंटिलेशन नहीं करते, उसमें मॉइस्चर फॉर्मेशन हो गई, जिसे हम कार्गो स्वेट या शिप स्वेट कहते हैं, उसको भी पढ़ेंगे हम, और स्टील सारा रस्ट हो जाएगा. सो वी हैव टू अवॉइड दैट स्वेट फॉर्मेशन. दैट इज बाय मींस, हाउ कैन वी अवॉइड? थ्रू वेंटिलेशन. तो मेरे वेंट से हमने लोड कर लिया, उसके बाद वेंटिलेटर ऑन करने सर चलता नहीं, मोटर जली हुई है. वेंट्स के साथ वेंट फ्लैप्स, आप चीफ ऑफिसर ने आपको ये काम दिया भी होगा, ये मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव डन, कि देखो भैया वेंट फ्लैप जो हैं दे आर ऑपरेटिंग और नॉट ऑपरेटिंग, ग्रीसिंग. कैरी टाइम में ये काम इसीलिए कराया जाता है. यस सर, नेचुरल वेंटिलेशन. यस, नेचुरल वेंट्स हैं, दूसरे आपके जिससे कहते हैं पोस्ट वेंटिलेटर्स, मशरूम पोस्ट वेंटिलेशन, जो आपकी मोटर से चलते हैं. देयर इज अ वेंटिलेशन की मोटर्स रहती हैं, बिग फैंस आर देयर, फिर उनके साथ भी उनके फ्लैप्स रहते हैं, वो भी आपने खोलने हैं, बंद करने. वो सारी चीज़ें जो है ऑपरेशन ठीक होना चाहिए. कार्गो लोड करने के बाद तो अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते, फ्लैप ही नहीं खुलता या फ्लैप बंद नहीं होता या फ्लैप है ही नहीं, सारा बारिश का पानी, सी स्प्रे सारा अंदर जाएगा, तब भी पानी चला जाएगा, यू स्टार्ट वंडरिंग पानी आ कहाँ से रहे. तो उसके साथ अटैच देखो कितनी चीज़ें. सो दैट्स वाई दिस साइड बाय साइड मेंटेनेंस इसीलिए चलती है, सो दैट दिस, ये सारा एक कार्गो स्पेसिस के साथ अटैच्ड है, राइट फ्रॉम योर हैच कवर्स टू होल्ड्स टू वेंट्स, this everything is connected for the cargo spaces. CO2 system, smoke detection system to be checked. Normally CO2 lines जो हैं, every quarter, every 3 months we blow through these lines. I don't know how many of you have seen that. Normally chief officer, chief engineer के साथ या second engineer के साथ मिलके जाके we blow through the lines या before loading. So that in case of any emergency, if I have to release CO2 in the holds, these lines are clear. क्योंकि उसमें dirt जाएगी, moisture जाएगी, तो line choke भी हो सकती है. So that system also should be in working condition. जो भी आपका fire fighting system है. Spar sealing, cargo battens. Cargo battens I'll show you. Basically these are the like dunnage which is kept on the sides of the ship. Ship side पे permanent लगी होती है, निकाल भी सकते हैं उसे, just so that the cargo doesn't come in contact with the ship side. Hatch covers to be in good condition, checked for weather tightness. स्पार सीलिंग का बताएंगे एक बारी.
Yeah, spar ceiling, I'll show you. Spar ceiling is basically पुराने जो जनरल कार्गो शिप्स होते थे उनके इवन जो टैंक टॉप है, आज तो आप टैंक टॉप को देखते हो, इज अ बेयर स्टील, इजंट इट? पहले वो जो छोटे छोटे शिप्स थे तो उनके ऊपर उनको वुड से कवर कर देते थे, इजंट इट? या कार्गो बैटन्स साइड्स में होते हैं, कार्गो बैटन्स आर लाइक दिस। आई शो यू, चलते हम थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, फिर आई शो यू व्हाट आर द कार्गो बैटन्स या स्पार सीलिंग जो है, जो शिप साइड पे है या टैंक। आजकल ऑफ कोर्स टैंक टॉप पे भी कुछ नहीं लगाते, कार्गो बैटन्स आर देयर। कार्गो बैटन्स समटाइम ऑन जनरल कार्गो शिप्स पे आज भी रहते हैं। सपोज आई एम लोडिंग अ बैग्ड कार्गो, आई विल शो यू, आई हैव द इमेजेस हियर। हैच कवर्स, ऑल ऑफ यू नो कि हैच कवर ये नहीं कि चमक तो रहे हैं बट पानी जाता है अंदर। इफ आई एम कैरिंग एनी कार्गो, वेदर जनरल कार्गो और बल्क कार्गो, अभी होल्ड के अंदर पानी गया तो कार्गो तो खराब हो जाएगा। व्हाट इज द यूज? हैवी क्लेम, शिप ओनर को पैसे देने पड़ेंगे। गार्ड रेल, चेन्स, ट्रांशंस टू बी प्लेस्ड अराउंड ओपनिंग्स फॉर सेफ्टी। अब कई स्पेसीज हैं जहाँ पे कि आपको लगता है कि यस पीपल कैन फॉल डाउन, क्रॉस डेक्स हैं, बूवी हैचेस हैं, तो वहाँ सारा आपने ये आपकी सेफ्टी का आ गया कि यस दोस प्लेसेस शुड बी सेफली गार्डेड सो दैट नोबडी कैन फॉल डाउन। Proper lighting in the hold must be checked. Means of access clear and safe from any hazards. Ballast lines to deep tanks. अगर by chance some of these ships, bulk carriers, you have a one hold for heavy weather ballast, उसमें हम ballast भी ले सकते हैं। अब उसको अगर ballast लेना है तो उसके बाद उसके जो कवर्स हैं उसको बंद भी करना। कवर तो आप बंद कर देते हो, बोसन के साथ गए गाने गाते हुए, उसको बंद कर दिया, हाँ सर बंद हो गया, एंड बाद में ऊपर से कार्गो लोड हो गया एंड जब फिर नीचे से टैंक को बैलास्ट किया तो पानी होल्ड में आना शुरू हो गया। वाई? बिकॉज नोबडी पेड अटेंशन। तो इसके लिए जब भी ये आपने मैनहोल्स वगैरह को बंद करना है तो उसको टेस्ट भी करना है। कैसे टेस्ट करेंगे? फ्लडिंग करके। अभी होल्ड में, हाँ जी सर चेक करने के बाद फ्लडिंग कर देंगे, जैसे डीबी टैंक में इन केस कोई लीकेज है तो तब तक वहां पर रहेगा। हाँ, और फिर एज रिक्वायर्ड उसको फिर दोबारा पंप आउट कर सकते हैं सर। या तो नॉर्मली जो आपका ये कनेक्शन होता है, अगर मेरे को बैलास्ट लेना है होल्ड में, स्पेशली दी शिप्स बल्क कैरियर्स में एक होल्ड रहता है हैवी वेदर बैलास्ट के लिए। अगर बाई चांस तो हम उसमें मैनुअल होता है उसको खोलेंगे और थ्रू द डीबी वी फिल अप एंड सेम वे वी डी बैलास्ट थ्रू द डीबी। और जब मैंने मैनुअल लगा दिया फिर मैं डीबी को डबल बॉटम टैंक को प्रेशराइज करता हूँ। बाई ग्रेविटी लाइन ही खोली आपने, पानी भर जाएगा उसमें प्रेशर आएगा। अगर लीकेज है तो मैनुअल से लीक होना शुरू हो जाएगा। अभी तो होल्ड एम्प्टी है, isn't it? Then you are very sure कि हाँ it is holding, जो काम हमने किया ठीक है। Cargo gear must be thoroughly checked to be in good working condition, rigged, ready for loading, winches, everything. आपने जैसा कहा कि yes, normally sometimes some ships you use the cargo cranes for opening closing the hatch covers. Otherwise sometimes we use the ship's crane for loading discharging of cargo also. So इसके लिए तो एक separate topic है, हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। कार्गो केयर क्या होता है, कार्गो सेफ्टी क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। बिल्जीज आपने देख ली, एंड जो मैं आपको कह रहा था कार्गो बैटन, दीज आर द बेसिकली दिस इज कॉल्ड कार्गो बैटन्स। ये आपके शिप साइड के जो फ्रेम्स होते हैं उसमें ऐसे हुक्स लगी होती हैं एंड ये छोटे छोटे पीसीज होते हैं 2 मीटर 3 मीटर के, आप उसको उनके अंदर जस्ट रख देते हैं एंड दिस इज बेसिकली द डनेज। ताकि आप जब कार्गो लोड करें, सपोज आई एम लोडिंग सम बैग्ड कार्गो और से जनरल कार्गो, सो दैट द कार्गो जो है शिप साइड को ना टच करे। शिप साइड को टच करेगा तो ना तो उसकी हम वेंटिलेशन कर सकते हैं, प्लस स्वेट के साथ तो वैसे ही खराब हो जाएगा। सो दिस इज टू अवॉइड, सो इसे कहते हैं स्पार सीलिंग या कार्गो बैटन्स। तो ये रिमूवेबल भी होते हैं बट ये सिर्फ जनरल कार्गो के लिए है। अब ये नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया, प्रीवियसली आई हैव सीन कि आपको आया हाउ विल यू प्रिपेयर द कार्गो होल्ड्स फॉर लोडिंग कोल, तो वहाँ पे आपने लिखना शुरू कर दिया आई विल मेक श्योर देयर साइड बैटन्स आर देयर या डनेज इज केप्ट। बल्क कैरियर्स में नहीं होते, ये ओनली फॉर जनरल कार्गो शिप्स, नॉट फॉर द बल्क कैरियर्स। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल जब आप अपना आंसर लिखोगे कि किस कार्गो के लिए मैं होल्ड प्रिपेयर कर रहा हूँ, कहाँ पे चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट बेसिकली द डनेज। नाउ डनेज क्या चीज़ है?
जैसा आपने देखा, दिस इज द डनेज, इट्स बेसिकली अ रॉ वुड, जो कि टैंक टॉप पे नीचे होल्ड पे हम उसको बिछाते हैं सो दैट द कार्गो डजंट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टील टू स्टील. Dunnage is always used to provide a protective buffer between the steel cargoes, vessel tank tops, bulkheads, other cargoes for the purpose of protecting the cargo against damage by moisture or by residual chemicals or salts that have accumulated within the, जैसे आपने कहा था भी मॉइस्चर है, कोई ड्रिपिंग्स होती हैं, कुछ भी कंडेंसेशन होती है, तो अगर वो आती है तो कोई बात नहीं, वो इसके नीचे से निकल जाएगी, isn't it? अगर पानी भी है थोड़ा बहुत, वो निकल के बिल्जीज में चला जाएगा, वी कैन पंप आउट, सो कार्गो इज नॉट डैमेज. अगर मैंने सीधा कार्गो टैंक टॉप पे रख दिया, फिर तो पानी वहीं एकमुलेट हो जाएगा, कार्गो गया. तो इसका एक एनी एग्जांपल यू कैन गिव. अब आप सबने स्टोर्स रिसीव किए होंगे, isn't it? डेक में भी कई बार सामान प्रोविजंस स्टील कॉइल्स के लिए सर वुडन वेजेस होती थी. हाँ, वो तो चलो कार्गो के लिए. अदरवाइज जिन्होंने कार्गो नहीं देखा या इवन व्हाट वी कॉल दिस टैंकर्स पे, यू ऑल मस्ट हैव रिसीव्ड स्टोर्स. देखो नीचे पैलेट्स लेके आते हैं, पैलेट्स के ऊपर है कुछ आपने प्रोविजन स्टोर रिफर में डालने से पहले नीचे बिछाते हैं. अब तो सर प्लास्टिक के आ गए हैं. हाँ, आजकल तो डनेज मूविंग रोप वगैरह को भी सर पैलेट्स के ऊपर रखा जाता है, वुडन पैलेट्स के ऊपर जैसे वैसे. हाँ, और कोई एग्जांपल देखो आपने, लूब ऑयल ड्रम्स आपके हर शिप में कॉमन है, लूब ऑयल ड्रम्स. सर पेंट ड्रम्स की पैलेट्स आती है, हाँ, सारी चीजें. चलो पेट ड्रम तो हम उठा के स्टोर में रख लेते हैं, बट सर्टन थिंग्स, हम चीजें, हमें कोई गैस सिलेंडर कुछ है जो हमें डेक पे ही सिक्योर करना है, इंजन रूम का सामान होता है, लूब ऑयल ड्रम होते हैं. स्लिंग्स वायर्स जो क्रेन में यूज होते हैं, उसके लिए भी हम लोग पैलेट्स यूज करते हैं. यस, प्रोविजन स्टोर में भी सर पैलेट्स यूज होता है. तो उसका क्या पर्पस है? व्हाट ऑल पर्पस दिस डनेज सर्व्स? Sir, in in open seas, if in open sea, it helps to protect, because it helps in protecting rusting on main deck, and if we cover that also with a cloth or something, it will protect the material. यहाँ एक सिंपल लैंग्वेज में है, देखिए कार्गो को पोजीशन में मैंने यार उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होने देता. यस, स्टील टू स्टील डायरेक्ट, मॉइस्चर से बचाने के लिए. यस, मॉइस्चर भी है. एग्जांपल, कार्गो को छोड़ के हम अब लूब ऑयल ड्रम्स को देखिए, अगर आप उसको सीधा डेक पे रख देते हो तो क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद वो ड्रम जो है उस पर सॉल्ट वाटर लगेगा, स्प्रे आएगा, रस्टिंग तो होगी, उसका बॉटम जो नीचे से सड़ना शुरू हो जाएगा और फिर तेल लीकेज शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो पानी सॉल्ट वाटर वहीं पे खड़ा है. अगर मैंने वही लूब ऑयल ड्रम्स को डनेज के ऊपर रख दिया या नीचे पैलेट रख दिया, तो पानी आएगा भी डेक पे तो निकल जाएगा. आपका जो ड्रम है, किसी भी चीज़ का ड्रम है, वो उसका बॉटम खराब नहीं होगा. एंड उससे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको उसको ड्रम को सीधा आप डेक पे रख पे, कितनी भी आप रोप रस्सी से उसको बांधो, उसकी लैशिंग इतनी अच्छी नहीं होगी. नाउ यू कंपेयर व्हेन आई एम कीपिंग दिस ड्रम ऑन टॉप ऑफ अ वुडन पैलेट और एक लकड़ी की पतली डनेज के ऊपर रख के अगर मैं उसको करता हूँ तो वैसे ही नहीं हिलेगा. फ्रिक्शन, दैट इज आई एम एडिंग एडिशनल फ्रिक्शन ताकि ये कार्गो मूव ना करे, isn't it? अब तो आपने शिप पे काम किया तो आपने देखा होगा कैबिन में भी सामान इधर से उधर गिरा होगा, एक्सेप्ट लैपटॉप. किसी का तो लैपटॉप भी गिर जाता है. लैपटॉप तो हम संभाल के रखते हैं, बिकॉज इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर्सनल नहीं. ज़्यादा रोलिंग हुई तो धूम धड़ाम कैबिन में भी होती है. क्यों? हमने कार्गो सिक्योर ही नहीं किया. यस सर. जो अच्छा सीमैन है पहले से प्रिपेयर होता है. दिस इज कॉल्ड सीमैनशिप. सीमैनशिप कोई और किसी रॉकेट साइंस का नाम नहीं है. सीमैनशिप इज दैट यार वी नो आई हैव सेल्ड, लास्ट टाइम रोलिंग हुई थी, पूरी चेयर भी इधर से उधर गई थी, सब देखा होगा, चेयर के नीचे भी चेन होती है, सब कुछ बांध के रखा जाता है. सो दिस इज व्हाट, अगर आपने यहाँ से कैबिन से ये चीज़ें सीख ली, यहाँ यार मैंने सब बांधना है, बाय द टाइम यू बिकम चीफ ऑफिसर यू नो हाउ टू सिक्योर द कार्गो. तो अगर मैं अपना कैबिन ही, अपना सूटकेस ही, अपना लैपटॉप ही नहीं अगर मैं संभाल सका, तो फिर मैं कार्गो क्या सिक्योर करूँ?
isn't it? उसके लिए आप एंटी स्किड मैट रखते हो, जो भी आपके पास, that is also like something for, you know, the stuff in the cabin not to fall on the bridge. गैली में भी हम जाके बोलते हैं, चीफ कुक को देखा होगा सब जगह उसने रॉड्स लगाई होती हैं ताकि उसके बर्तन ना गिरे. सो दिस इज ऑल बच्चे फॉर द सेफ्टी. दिस इज कॉल्ड द सिक्योरिंग, बिकॉज वी नो शिप इज गोइंग टू मूव. ओके, सो आज मैं यहीं तक रोकता हूँ. सो वी विल कंटिन्यू व्हेन वी मीट नेक्स्ट. सो नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा हम सीरियसली शुरू हो जाएंगे, इसको भी कंटिन्यू रखेंगे. सो आई होप यू ऑल कैन लॉग इन वेरी नाइसली. सो इट्स गुड. तो किसी को हो सकता है कभी प्रॉब्लम भी आए इन लॉगिंग, बिकॉज नेटवर्किंग कभी प्रॉब्लम देती है. सो देयर इज नो इश्यूज. सो स्लोली आप सब सीख जाओगे, एंड देन वी विल सी हाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन दिस. ओके, सो आज के लिए आई होप एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी. No, sir. No, sir, thank you. चलो गुड. सो No, sir. मेल आ Thank you. या गुड, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा. देन आई विल स्टार्ट सेंडिंग यू द नोट्स आल्सो. सो दिस इज एटलीस्ट आज का था जस्ट टू फैमिलियराइज यार कार्गो क्या चीज़ है, पेपर है, कितने क्वेश्चन है, कैसे मैंने करने हैं. कार्गो पेपर के लिए भी एक प्लानिंग, हर चीज़ के लिए प्लानिंग होती है. नॉलेज अलग चीज़ है, प्लानिंग पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपने आज सीख लिया कि हाँ भी 10 क्वेश्चन है, 8 हैं, कैसे मैं करूँगा, टाइम कितना टाइम किसको देना है ताकि मेरा कोई क्वेश्चन ना छूटे. चलो, थैंक यू सर. या वेलकम आज के लिए. ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Have a sir. safe weekend. वेलकम बच्चे, वेलकम. हैव अ सेफ वीकेंड. सी यू नेक्स्ट वीक. या Thank you, sir. Jeffrey.